إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين معزز علماء کرام، محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، بغیر کسی تمہید کے سیدھے اپنے ٹاپک پر آتے ہیں اور کچھ باتیں آج آپ لوگوں سے اپنے موضوع کے تحت کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا ہوگا، بہت مشہور لفظ ہے، آج اسی پر ہی بات کرنا ہے۔ وہ مشہور لفظ کون سا ہے؟ مشہور لفظ ہے فتنہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ لفظ نہ سنا ہو۔ آج یہ دیکھیں گے کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں۔ فتنہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں فتنہ کہتے ہیں جو سونا ہوتا ہے نا، پہننے والا، سونے کو جب آگ کے اندر ڈالتے ہیں اور آگ کے اندر اس کو جلاتے ہیں، یہ پتہ کرنے کے لیے کہ یہ جو سونا ہے یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کے؟ سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے، یہ پتہ لگانے کے لیے جب سونے کو آگ پر جلایا جاتا ہے، اس پورے کام کو، اس پورے عمل کو، اس پورے پروسیس کو
عربی میں کیا بولتے ہیں بولو؟ فتنہ. یعنی فتنہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو فتنہ اس کو کہتے ہیں. یہ لفظ یعنی فتنہ عربی زبان میں کئی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس فتنے کا ایک بہت مشہور جو معنی ہے وہ ہے امتحان، آزمائش، کسی کو پرکھنا، آزمانا، جانچنا، آزمائش کرنا، امتحان لینا، اس چیز کو عربی میں فتنہ بولا جاتا ہے. تو فتنے کے ذریعے سے کھرے اور کھوٹے کو پہچانا جاتا ہے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے تعلق سے کیا فرمایا حدیثوں کے اندر؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو صحیح بخاری کے اندر ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، حتی یقبض العلم، جب تک کہ علم کو اٹھا نہ لیا جائے گا، وتکثر الزلازل، اور زلزلے جلدی جلدی آنے لگیں گے، ویتقارب الزمان، اور زمانہ قریب ہو جائے گا. تو یہ تین نشانی بتائی پیارے نبی نے، لیکن مجھے ان تینوں پر بات نہیں کرنا ہے. کبھی قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے اگر بات کریں گے تب ان تینوں کے تعلق سے بات کریں گے. تو پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم کو اٹھا نہ لیا جائے، زلزلے زیادہ آنے لگیں گے، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور زمانہ قریب ہو جائے گا. اور چوتھے نمبر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ. اس لفظ کو غور سے سن لینا. پیارے نبی فرماتے ہیں وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور قیامت اس وقت تک بھی قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک بھی نہیں آئے گی، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، جب تک کہ فتنے ظاہر نہیں ہونے لگیں گے. کیا معلوم ہوا؟ کہ قیامت سے پہلے فتنے زیادہ آئیں گے، قیامت سے پہلے فتنے بہت زیادہ آئیں گے، رونما ہوں گے. اور میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا نا کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ امتحان کو. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ جانچنے کو. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ تکلیف کو. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ مشکل کو. کسی چیز، کسی مصیبت میں کسی آدمی کو ڈال کر اس کو جانچا جائے، پرکھا جائے، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ اس کو فتنہ بولا جاتا ہے. تو پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ جب قیامت کا قریب ہوگا تو فتنے زیادہ ظاہر ہوں گے، یعنی امتحان زیادہ ہوگا، آزمائش زیادہ ہوگی. ایک اور حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں ستکون فتن، عن قریب فتنے رونما ہوں گے، فتنے ظاہر ہوں گے. ان فتنوں کے دنوں میں القاعد فیہا خیر من القائم، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے. والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے. والماشی فیہا خیر من الساعی، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے. کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ پتہ یہ چلا کہ جب فتنے زیادہ ظاہر ہونے لگے تو ایسے وقت میں دین کے اوپر جمنا ہے، دین کے اوپر قائم رہنا ہے. صحابی رسول بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے اندر کسی اونچے سے مکان میں، بڑے سے مکان میں جس کی چھت کافی اونچی تھی، اونچے سے مکان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چھت کے اوپر چڑھے اور پیارے نبی نے فرمایا حل ترون ما رأى، او میرے صحابہ
کیا جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ تم کو بھی نظر آ رہی ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کیا دیکھ رہے ہیں، مجھے کیا معلوم؟ ہم لوگ بھی نا چھتوں پہ چڑھتے ہیں نا، جس کا گھر اونچا ہو چھت پہ چڑھتے ہیں اور دیکھتے کیا ہیں چھت پہ چڑھ کر؟ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کی چھت پر کون بیٹھا ہے، اس کی چھت پر کون بیٹھا ہے، گلی میں کون نکل کے جا رہا ہے، یہی دیکھتے ہیں نا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے کیا معلوم آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم، او میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں کے اندر فتنے داخل ہو رہے ہیں، تمہارے گھروں کے اندر فتنے داخل ہو رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کس طریقے سے داخل ہو رہے ہیں، کمواقع القطر، جس طریقے سے بارش کی بوندیں تمہارے گھروں میں داخل ہوتی ہیں اسی طریقے سے فتنے بھی تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ بارش جب ہوتی ہے تو کیا صرف کچے مکانوں پر ہوتی ہے، پکے مکانوں پر نہیں ہوتی؟ اور جب بارش ہوتی ہے تو کیا صرف چھوٹے مکانوں پر ہوتی ہے، بڑے مکانوں پر نہیں ہوتی؟ جب بارش ہوتی ہے تو ہر جگہ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس گھر میں ہو رہی ہے اس گھر میں بارش نہیں ہو رہی ہے، نہیں، بارش ہوگی تو سب کے گھروں پر ہوگی۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے بارش تمہارے گھروں کے اندر داخل ہوتی ہے اسی طریقے سے فتنے تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ جب فتنے آئیں گے تو ہر گھر میں جائیں گے۔ بات سمجھ میں آتی نا آپ لوگوں کو؟ ہاں، جب فتنے آئیں گے تو ہر گھر کے اندر فتنے داخل ہوں گے، پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جس طریقے سے بارش نازل ہوتی ہے کہ ایک بوند، اس کے بعد دوسری بوند، اس کے بعد تیسری بوند، بوند کے اوپر بوند، پانی کے اوپر پانی، پانی کے اوپر پانی، بوند کے اوپر بوند، جس طریقے سے لگاتار بارش ہوتی ہے اور بوندیں گرتی رہتی ہیں اسی طریقے سے فتنے بھی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، بہت بڑی تعداد میں فتنے تمہارے گھروں کے اندر داخل ہوں گے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھر میں جائیں گے اور بارش کی بوندوں کی طرح ہوں گے، یعنی ایک دو نہیں آئیں گے، جیسے بارش کی بوندیں لگاتار آتی چلی جاتی ہیں اسی طریقے سے فتنے لگاتار آتے چلی جائیں گے۔ ایک حدیث کے اندر پیارے نبی نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب، فتنے تمہارے دلوں کے اوپر بھی رونما ہوں گے، تمہارے دلوں کے اوپر بھی فتنے ڈالے جائیں گے، کالحصیر، چٹائی کی طرح، عودن عودن، جس طریقے سے چٹائی کو بنا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، ایک لکڑی کے بعد دوسری لکڑی، ایک دھاگے کے بعد دوسرا دھاگا، ایک تنکے کے بعد میں دوسرا تنکا، جس طریقے سے ڈالا جاتا ہے اسی طریقے سے فتنے بھی تمہارے درمیان میں آئیں گے، یعنی ایک کے بعد دوسرا فتنہ، دوسرے کے بعد تیسرا فتنہ، تیسرے کے بعد میں چوتھا فتنہ۔ اور آدمی جب چٹائی پہ لیٹتا ہے تو چٹائی پہ لیٹنے کے نشان بن جاتے ہیں اس کے بدن پر۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ چٹائی کی طرح فتنے تمہارے اوپر آئیں گے، یعنی اس کا اثر تمہارے اوپر دکھے گا جس طریقے سے بدن پر دکھتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتنے تمہارے اوپر ایسے آئیں گے التی تموج کموج البحر، جیسا کہ سمندر کے اندر لہریں اٹھتی ہیں، سمندر کے اندر لہریں آتی ہیں، سمندر کے اندر جس طریقے سے موج کے اوپر موج آتی ہے اسی طریقے سے فتنے بھی تمہارے اندر آئیں گے۔ کبھی سمندر دیکھا ہے، کوئی بڑا دریا دیکھا ہے، اس کے کنارے آپ کھڑے ہو جائیے تو لہریں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آتی ہیں۔ کبھی کبھی بڑی لہر آتی ہے تو آدمی ڈر جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ لہر اپنے ساتھ میں لے کر مجھے ڈبو لے جائے اور مجھے کھینچ کر سمندر میں نہ لے جائے۔ فرمایا فتنے بھی ایسے ہی آئیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فتنہ تمہیں اپنے ساتھ ہی کھینچ کر لے جائے اور تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دے۔ اور سمندر کے اندر لہر ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد آتی چلی جاتی ہے، اسی طریقے سے فتنے بھی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد آتے چلے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر کس طریقے سے فتنوں سے ڈرایا ہے اور کس طریقے سے فتنوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو آگاہ فرما دیا۔
एक हदीस और सुनाता हूँ, फिर बात आगे बढ़ाता हूँ। प्यारे नबी फरमाते हैं, ये भी फितनों के ताल्लुक से, फरमाया बादिरू बिल आमाली फितनन, जब फितने आने लगे, फितने जाहिर होने लगे, फितने रोनुमा होने लगे, बादिरू बिल आमाले, तो आमाल में ज्यादती करो, आमाल में जल्दी करो, ज्यादा से ज्यादा अमल करो। मालूम ये हुआ कि ये जो फितने आते हैं, इनसे लड़ने का एक ही तरीका है, इनसे बचने का एक ही तरीका है कि इंसान नेक आमाल ज्यादा कर दे। अब ये दौर जो चल रहा है ना, ये फितनों का दौर चल रहा है, तो इनसे, इस दौर के अंदर अगर फितनों से बचना है तो हमें नेक अमल ज्यादा करना पड़ेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस फितनों के दौर के अंदर लोग नेक अमाल से दूर हटते जाते हैं, भागते जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। प्यारे नबी फरमाते हैं, ये फितने तुम्हारे ऊपर आएंगे, और किस तरीके से आएंगे? फरमाया मुज़लिम, जैसे अंधेरी रात के टुकड़े हुआ करते हैं, इसी तरीके से फितने तुम्हारे ऊपर आएंगे। देखिए, एक हदीस के अंदर दरिया की मौज और लहर से प्यारे नबी ने तशबीह दी, एक में आसमान की बूंदों से और एक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चटाई के तिनकों से। और इस हदीस के अंदर प्यारे नबी ने फरमाया कि फितने तुम्हारे ऊपर ऐसे आएंगे जैसे अंधेरी रात के टुकड़े होते हैं। कभी बहुत ज्यादा अंधेरी रात हो और आप अपने घर से बाहर निकले हो तो आपको कैसा महसूस होता है? प्यारे नबी ने फरमाया अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह, यानी अंधेरी रात में पहले तो आपको चलेंगे कैसे, आगे चलते हुए ना दिखेगा नहीं, अंधेरा होता है तो दिखता नहीं है। दूसरी चीज, अंधेरी रात में इंसान के ऊपर हमला करना और उसको मार गिराना आसान होता है। और तीसरी चीज, आपको दिखाई न दे, आप आगे भी ना बढ़े, आपके ऊपर कोई हमला ना भी करे, फिर भी अंधेरी रात के अंदर इंसान को डर महसूस होता रहता है। प्यारे नबी ने फरमाया कि फितनों के दिनों में तुम्हें भी बस ऐसा ही लगेगा, कोई दबोच न ले, कोई फितना हमें खा न जाए, कोई फितना हमें तबाह बर्बाद न कर दे। तो ये फितना, फितने के माना इम्तिहान, आजमाइश। अब सवाल ये है कि ये अल्लाह ताला जो है क़यामत के करीब बहुत ज्यादा फितने भेजकर, यानी इम्तिहान भेजकर, आजमाइशें भेजकर हमें क्यों इन इम्तिहान के अंदर, इस फितने के अंदर मुब्तला करना चाहता है? अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया, फरमाया वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें आजमाएंगे। क्या फरमाया जा रहा है? हम तुम्हें आजमाएंगे। वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें आजमाएंगे, अच्छे फितनों के अंदर भी मुब्तला कर देंगे और बुरे फितनों के अंदर भी मुब्तला कर देंगे। वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें इन फितनों के जरिए से आजमाएंगे, हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। मैंने आपको बताया था ना, फितने के माना इम्तिहान, फितने के माना आजमाइश। ये लफ्ज याद रखना, इसी से आपको आगे समझ में आएगी पूरी तकलीफ। अब सवाल ये है कि हमें क्यों आजमाया जा रहा है, हमें क्यों आजमाया जा रहा है? उसका भी जवाब अल्लाह ताला ने दिया। अल्लाह फरमा रहा है, अहसिबन नासु अय्युतरकू अय्यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये समझ लिया है, अय्युतरकू, हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, अय्यक़ूलू आमन्ना, सिर्फ इतनी बात कहने पर कि हम अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम अल्लाह की तौहीद पर चलने वाले हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं। अय्यक़ूलू आमन्ना, इतना कह दो, क्या सिर्फ इसी बात पर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? वहुम ला युफ्तनून, क्या हम तुम्हें आजमाएंगे नहीं? क्या हम तुम्हारा इम्तिहान नहीं लेंगे? क्या हम तुम्हें आजमाएंगे नहीं? आदमी ये कह दे कि मैं तो अल्लाह को मानता हूं, बस हो गया काम, जन्नत दे दो, उठाओ दे दो जन्नत। जन्नत इतनी आसान है, जन्नत पाना इतना आसान है कि इंसान ये कह दे अल्लाह मैं तो तुझे मानता हूं, अल्लाह मैं तेरे ऊपर ईमान लाया, अल्लाह बस तू ही है, इतना कह दिया और अल्लाह ताला फरिश्तों से कहा रे बड़ा अच्छा बंदा है, लो लो दे दो इसको जन्नत। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। फरमाया अहसिबन नासु
अय्युतरकू अय्यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों को सिर्फ इस बात पर छोड़ दिया जाएगा कि वो ये कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, वहुम ला युफ्तनून, और क्या उनको आजमाया नहीं जाएगा। अल्लाह फरमाता है वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ओ दुनिया के लोगों, ओ मेरे प्यारे नबी की उम्मतियों, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तुमसे पहले भी कितने नबी आए, तुमसे पहले भी कितनी उम्मतें आई, तुमसे पहले कितने रसूलों के मानने वाले आए। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना, हमने तो उनको भी आजमाया था, हमने तो उनको भी चेक किया था, हमने तो उनका भी इम्तहान लिया था, हमने तो उनको भी आजमाया था। फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, ताकि हम भी तो जान लें कि तुम में से कौन अपने ईमान के ऊपर सच्चा है, कौन अपने दावे के ऊपर सच्चा है, कौन अपने ईमान के दावे के ऊपर सच्चा है और कौन अपने दावे के ईमान के ऊपर झूठा है। चेक भी तो किया जाएगा ना, थोड़ा देख भी तो ले कि तुम कितना झूठ बोल रहे हो और कितना सच बोल रहे हो। इस चीज को जांचने के लिए, परखने के लिए अल्लाह ताला क्या करता है, इंसानों को फितने के अंदर मुब्तला करता है, यानी इम्तहान के अंदर डालता है, आजमाइश के अंदर डालता है। अब जो बंदा अपने ईमान के दावे में सच्चा होता है वो इस इम्तहान से पास हो जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्यारा और नेक बंदा बन जाता है। और जो आदमी अपने ईमान के दावे के अंदर झूठा होता है, सिर्फ जबान से इकरार करता है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाला हूं, वो फितने के अंदर मुब्तला हो जाता है और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर देता है। तो फितना कहते हैं इम्तहान को, फितना कहते हैं आजमाइश को। और फितना क्यों आता है, मतलब इम्तहान क्यों होता है, आजमाइशें क्यों आती हैं, इंसान को जांचने और उसको परखने के लिए। और प्यारे नबी ने हमें यह भी फरमाया था कि जब कयामत करीब आएगी तो फितने ज्यादा जाहिर होंगे, यानी उस वक्त इम्तहान और आजमाइश ज्यादा होगी। अब हम ये देखते हैं कि ये जो टाइम चल रहा है ये कुर्ब कयामत का टाइम है। क्यों? इसलिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो छोटी छोटी निशानियां बताई थी वो तकरीबन सारी पूरी हो चुकी हैं और बड़ी बड़ी निशानियां कुछ बाकी रह गई हैं। तो ये कुर्ब कयामत का टाइम है, कुर्ब कयामत का टाइम है तो फितने भी ज्यादा जाहिर होंगे। तो अब हम आज के दौर के अंदर कुछ फितने जो बहुत ज्यादा चलन में है, बहुत ज्यादा हमारे दरमियान में है, और ताज्जुब की बात तो यह है कि हम उस फितने को फितना समझते भी नहीं। उसमें से सबसे पहला फितना यानी सबसे पहला इम्तहान, सबसे पहली आजमाइश कौन सी है आज के दौर के अंदर? वो इम्तहान, वो आजमाइश है शिर्क। ये सबसे बड़ा फितना है, इससे बड़ा फितना कोई और नहीं हो सकता। शिर्क आज देखो मुसलमानों के अंदर शिर्क हर घर के अंदर दाखिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और मुसलमान शिर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि मुसलमान शिर्क करते भी हैं और शिर्क को शिर्क समझते भी नहीं हैं, बल्कि उसको दीन समझते हैं। आप अगर समझाने के लिए खड़े हो जाएं तो कहते हैं कि ये असल में हमारा दुश्मन है, ये प्यारे नबी का दुश्मन है या औलिया अल्लाह का दुश्मन है। तो शिर्क घरों के अंदर दाखिल होगा। प्यारे नबी ने क्या फरमाया कि मैं देख रहा हूं तुम्हारे घरों के अंदर फितने दाखिल हो रहे हैं। तो फितनों में सबसे बड़ा फितना शिर्क है। आज देख लिए मुसलमानों की हालत क्या है। सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए, अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए अय्यु ज़म्बे आज़म, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अय्यु ज़म्बे आज़म, सबसे बड़ा गुनाह क्या है, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह के नबी फरमाते अंत जाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, कि तू अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारे, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करे, अल्लाह के अलावा किसी और से मांगे, अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ करे, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदे करे, अल्लाह के अलावा किसी और से बेटा बेटी मांगे, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारे। अंत जाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, जबकि अल्लाह ही तेरा खालिक है, अल्लाह ही ने तुझे पैदा किया है। ये सबसे बड़ा फितना जो आज हमारे घरों के अंदर दाखिल हो रहा है। देखिए मुसलमानों, बच्चों के काला टीका लगा हुआ, क्यों? ये काला टीका किस लिए लगा? नजर नहीं लगेगी। अल्लाह के बंदो,
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर बद से बचाने के लिए काला टीका बताया था या दुआएं बताई थी? कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर रोजाना अपने बच्चों के ऊपर दम करो। नजर बद से बचाना है, जादू से बचाना है, लेकिन नहीं, काला टीका लगा हुआ है। ये काला टीका आपको बचाएगा नजर बद से? और कितने घराने मुसलमानों के अंदर ऐसे हैं जिनके बच्चों के काले टीके लगे हुए होते हैं? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और खास तौर से मैं आज आपसे एक बात और कह रहा हूं, आपके इस इलाके में जब मैं आता हूं यहां पर, हमारे यहां तो इतना नहीं चलता ये, बल्कि बहुत 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 कम रिवाज है इन सब चीजों का। लेकिन ये जो काले टीके जो है ना, ये मैंने आपके इलाके में बहुत ज्यादा देखे। छोटे छोटे बच्चों के टीके लगे होंगे नजर बद से बचाने के लिए। ये क्या है? ये फितना नहीं है? शैतान ने तुम्हें कहां से उठा के कहां खड़ा कर दिया, किस चीज के अंदर फंसा दिया? और इससे भी गए गुजरे, कुछ लोग तो काले टीके से काम चला रहे हैं और कुछ लोग काले टीके की जगह ताबीज लटकाए हुए। किसी के गले में ताबीज बंधा हुआ है, किसी के बाजू पे ताबीज बंधा हुआ है, किसी के कमर पे ताबीज बंधा हुआ है। अब कहो कि ताबीज क्यों बांधते हो, तो लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे कि मौलाना साहब ताबीज क्यों ना बांधे। ताबीज तो हम इसलिए बांधते हैं क्योंकि ताबीज के अंदर तो कुरान की आयत लिखी हुई होती है। अल्लाह के बंदो और अल्लाह की बंदियों, जब कुरान की आयत उसके अंदर लिखी हो तो तुम कमर पे बांधे घूम रहे हो। ये कुरान की बेअदबी नहीं है, ये कुरान की गुस्ताखी नहीं है, ये कुरान की बेअदबी नहीं है। तो ये क्या है? ये फितना है। इस फितने के अंदर इंसान को मुब्तला किया जा रहा है और इंसान मुब्तला भी हो रहा है इस फितने के अंदर। तो प्यारे नबी ने फरमाया, अय्यु ज़म्बे आज़म क़ाल अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, कि तू अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारे जबकि अल्लाह ही तेरा खालिक है, अल्लाह ही तेरा मालिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी शिर्क के बारे में, जिस फितने को हम फितना ही नहीं समझते, सुनो मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। ओ दुनिया के लोगों, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, अल्लाह कभी शिर्क करने वाले को माफ नहीं करेगा। अल्लाह कभी शिर्क करने वाले को माफ नहीं करेगा। व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, और उसके अलावा जिस गुनाह को चाहेगा माफ फरमा देगा। लेकिन शिर्क करने वाले को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। डर जाओ, शिर्क करने से डर जाओ। आप कहेंगे कि ये शिर्क क्या है? ये शिर्क वही है कि आपको लगता है कि अल्लाह भी औलाद देने पर कादिर है और दूसरे साहब भी औलाद देने पर कादिर है। फला साहब भी औलाद दे देते हैं, फला साहब भी बेटा बेटी दे देते हैं, फला साहब भी बिगड़ी बना देते हैं, फला साहब भी मुश्किल कुशाए हैं, फला भी हाजत रवाए हैं। इनसे मांगो या उनसे मांगो, एक ही बात है। यही तो शिर्क है। सजदे किसके लिए होना चाहिए? दुआएं किससे मांगना चाहिए? लेकिन आज कितने मुसलमानों को आपने खुद देखा होगा कि दुआएं कहीं और खड़े होकर मांग रहे हैं, दुआएं किसी और से हो रही हैं, सजदे हो रहे हैं। इसको शिर्क नहीं कहते और क्या कहते हैं? अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, अल्लाह शिर्क करने वाले को माफ नहीं करेगा। और कितनी प्यारी मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई है, गौर से सुनो, तबीयत खुश हो जाएगी। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना तदऊन मिन दुनिही, कि जो लोग भी अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं, किसी और से मांगते हैं, किसी और को अपना हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, वल्लज़ीना तदऊन मिन दुनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर, ये तो खजूर की गुठली के ऊपर चढ़ा हुआ जो छिलका होता है, उस छिलके के भी ये मालिक नहीं है। क्या बयान फरमाया? खजूर की गुठली पर चढ़ा हुआ जो छिलका होता है, उस छिलके के भी ये मालिक नहीं है। देखा है ना आप लोगों ने? खजूर तो खाई होगी ना, या सऊदी अरब जाएंगे तभी खाएंगे, है ना? खजूर तो खाई होगी ना, रमजानों में तो खूब खाई होगी। हाँ, रमजानों में खाना भी चाहिए, खजूर तो वैसे भी खाते रहना चाहिए। तो गुठली के ऊपर उसके एक पतली सी झिल्ली चढ़ी हुई होती है, उसको कितमीर बोला जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो इसके भी मालिक नहीं है। अरब का मामला है,
अरब का देश है, कुरान भी वहीं उतर रहा है, प्यारे नबी भी वहीं के हैं, साहबा इकराम भी वहीं के हैं, मानने वाले भी वहीं के हैं, न मानने वाले भी वहीं के हैं। अबू जहल भी वहीं का है और अबू बकर सिद्दीक भी वहीं के हैं, मानने वाले भी वहीं के, न मानने वाले भी वहीं के। खजूर पैदा होती है, खूब खाया करते थे, वो क्या उनके ऊंट और उनके जानवर भी खजूरें खाया करते थे, खजूर को बहुत अच्छे से जानते थे, तो उसके ऊपर चढ़ा हुआ छिलका और झिल्ली को कैसे नहीं पहचानते। अल्लाह ने उसी से मिसाल दी, फरमाया ये झिल्ली इसके भी मालिक नहीं है। देखो इसके अंदर कितना बड़ा फलसफा है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये भी कह सकता था कि ये लोग जिनको अल्लाह के अलावा पुकारते हैं, अल्लाह के अलावा जिनसे दुआएं मांगते हैं, ये तो सूरज के भी मालिक नहीं है, ये तो जमीन के भी मालिक नहीं है, ये तो आसमान के भी मालिक नहीं है, ये तो पहाड़ों के भी मालिक नहीं है। अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी चीजों का नाम ना लिया, बल्कि अल्लाह ने बिल्कुल बिल्कुल मामूली सी चीज का नाम लिया और फरमाया ये तो खजूर की गुठली के ऊपर चढ़े हुए छिलके के भी, झिल्ली के भी मालिक नहीं है। क्यों फरमाया? बड़ी चीजों का भी तो नाम लिया जा सकता था ना, लेकिन नहीं, बड़ी चीजों का नाम लिया जाता तो शक पैदा हो जाता। कैसे? मैं कहूं अगर किसी से कि आपके पास 1 लाख रुपया नहीं है, तो शक हो सकता है कि भाई 1 लाख नहीं है, हो सकता 50,000 हो। समझ में आ रहा है? अगर मैं ये कहूं कि आप पहाड़ के मालिक नहीं है, तो आप सोच सकते हैं हो सकता पहाड़ के मालिक नहीं है लेकिन पहाड़ी के हो। तो ये बयान नहीं किया जा रहा है। मैं आपसे कहूं कि आपके पास 1000 रुपए नहीं है, तो हो सकता है कि 1000 ना हो 500 हो, 500 के आप मालिक हो ना, ये नहीं बताया जा रहा। इतनी छोटी चीज का नाम लिया कि सुनने वाले को भी शर्म आ जाए। फरमाया तुम खजूर की गुठली के ऊपर जो छिलका चढ़ा हुआ होता है, जो मुंह में आ जाता है तो खा लेते हो, नहीं आता है तो फेंक देते हो, जिसकी कोई औकात नहीं समझते हो, तुम उसके भी मालिक नहीं हो, उसके भी मालिक नहीं हो। अब आप एक चीज और देखें फिर इसके अंदर, तो इसी से मिसाल क्यों दी, कोई और चीज भी ली जा सकती थी, ये झिल्ली ही की मिसाल क्यों दी जा रही है? तो हुक्मा ने ये बात लिखी है, बड़ी प्यारी बात। वो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी चीज को बेकार नहीं बनाया। ये जो छिलका है ना, जो गुठली के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, ये इतनी जबरदस्त चीज है कि ये खजूर की मिठास को गुठली के अंदर नहीं जाने देता और गुठली की कड़वाहट को खजूर के अंदर नहीं आने देता। ये मामूली सी चीज। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनी मा यमलिकूना मिन शै, मालिक नहीं। आज हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं, आए हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो कैसे तरबियत किया करते थे। मेरी माएँ बहनें खास तौर से इस बात को गौर से सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बैठे हुए हैं, छोटे से बच्चे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में बैठे हैं, आपने फरमाया या गुलाम, ए बच्चे, ए बेटे, जैसे हम लोग प्यार में कह देते ना, ए मेरे बेटे। कभी कभी ना किसी को आप बेटा कह दो तो गुस्सा हो जाता है, बेटा बेटा थोड़ी हूं मैं तुम्हारा। प्यार में बेटा कह सकते हैं, प्यारे नबी भी कहा करते थे। कई हदीसें इस तरीके की आई हैं कि प्यारे नबी ने छोटे बच्चों से बेटा कहा है। तो अगर कोई बड़ा आदमी किसी छोटे को बेटा कहे तो बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे नबी ने फरमाया या गुलाम, ओ बच्चे, ओ बेटे, इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन, मैं तुझे कुछ चीजें सिखा रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखना। अल्लाह के नबी जरूर बताइए। आपने फरमाया इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह, जब तुम सवाल करना तो अल्लाह ही से सवाल करना। व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, और जब तुम मदद मांगना तो अल्लाह ही से मांगना। यानी अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए हो तो अल्लाह से दुआ करना, जब तुम्हें किसी तरह की मदद चाहिए हो तो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से दुआ करना। और उसके बाद का जुमला सुन लो मेरे भाइयों। प्यारे नबी फरमाते हैं ए बच्चे, वालम अन्नल उम्मता लव इज्तमाअत अला अन यनफऊका बिशैइन, सारे लोग इकट्ठा हो जाएं और तुम्हें कोई फायदा पहुंचाना चाहें, लम यनफऊका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु लका, हाँ उतना ही फायदा तुम्हें मिलेगा जितना अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है। यानी सारे कायनात, सारी जमीन और आसमान, ये आसमानों के फरिश्ते, ये जिन्नात, ये इंसान, ये सारे के सारे एक जगह इकट्ठा होकर सोचे इस इंसान को
फायदा पहुंचाना है। अल्लाह के नबी फरमाते लेकिन अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया फायदा नहीं होगा तो तुम्हें कोई भी फायदा नहीं पहुंचा सकता। और मेरे बेटे, अगर सारे लोग मिल जाए और मिलकर तुम्हारा नुकसान करना चाहे, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, तो ऐ मेरे बेटे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत के अंदर फायदा लिख दिया है। यह है तौहीद, इसको कहते हैं तौहीद। ये अपने बच्चों को सिखाया करो, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया करते थे। इससे अल्लाह पर अकीदा मजबूत होता है, अल्लाह पर ईमान मजबूत होता है। और जब किसी बंदे का, किसी बंदी का अल्लाह पर ईमान मजबूत हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कितना खुश हो जाता है। तो फितने किस लिए आते हैं? इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए कि तुम्हारा ईमान कितना पुख्ता है। आज देख लो मेरी माओ बहनों, जरा सा बच्चा बीमार हुआ, 2-3 दिन तक तो दवा लेने के लिए गए, और जब 2-3 दिन तक कोई फायदा न मिला, शौहर बेचारा तौहीद वाला है, अल्लाह को मानने वाला है, शिर्क से दूर रहता है, लेकिन ये औरत बार बार कह रही है कि मेरी सहेली कह रही थी, मेरी खाला कह रही थी, मेरी चच्ची कह रही थी, मेरी बहन कह रही थी, फला बाबा के पास में चले जाना, फला बाबा के पास में जाके ताबीज ले लेना, फला बाबा के पास मजार पे चले जाना, फला जगह पे चले जाना, दुआ कर लेना, बच्चा ठीक हो जाएगा। शिफा कौन देता है? बोलो, है शक है कोई आप लोगों को? अभी मुझसे पहले जो साहब तकरीर कर रहे थे उसमें तो आप लोग बहुत बोल रहे थे, तो मैं देख रहा था पीछे से बैठ के। अब मैं बोल रहा हूं तो आप खामोश बैठे हुए, है ना? तो शिफा कौन देता है, सेहत कौन देता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे बच्चे, इन तमाम चीजों का ध्यान रखना, ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। आज मेरी माएं बहनें जरा गौर करें, ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर जब आप अल्लाह के दर को छोड़ते हैं तो आप ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं, सबसे पहले आपका ईमान जाता है, फिर आपकी दौलत जाती है, और कभी कभी तो वहां पर इंसान की इज्जत भी चली जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? अल्लाह का